Assalamu alaikum, Aisha. Thank you so much for joining the session. Welcome, Salam Umair. It's really nice to be here. It's my pleasure to have you on this session. I am very excited whenever I talk to people who move to different countries for their masters and all, because that gives me a multiple variations of के हर बंदे का अलग अलग होता है. And you are in Hungary. Very few people I know जो चूज करते हैं हंगरी को फॉर देयर मास्टर्स. A lot of time people usually choose Canada, US, US, Canada, Singapore या कोई मिडिल ईस्टर्न कंट्री को पिक करते हैं. Hungary, Yes. Hungary was very new. That is one thing that I want to discuss, and I'm pretty much sure there are a lot of things that we need to discuss in the session. But moving forward, I'll be happy if you can introduce yourself, tell me about yourself, how's life, how's everything in Hungary, and what's new, and then we'll start the session. Sure, that sounds great. So, my name is Aisha Javed. I just graduated from LUMS in May 2025. My major was economics and political science, and right now in Hungary, I'm pursuing my master's in management and leadership from Budapest Metropolitan University. So, overall, right now, it's fall in Budapest, so the weather is definitely like our winters back in Lahore. So, just adjusting to the weather here and adjusting to the way of life. Overall, I'm currently in the capital, Budapest. So Budapest is amazing as is. Life is amazing here. It's very happening. And apart from that, I'm just juggling my university along with other things at hand, like uh, cleaning, cooking, managing all my household chores, and then at the same time, job hunting and going for extracurriculars and making friends. So it's definitely very happening right now. Fair enough. Thank you so much for the brief introduction. And I think the conversation will be much more funny क्योंकि, or interesting because it's only 40-50 days you move to Hungary, and Yeah. you are also new, so it would be much better to understand a real mindset के reality क्या है, किस तरीके से चीजें देखते हैं. We'll be discussing about the Hungary phase of your life, like the phase where you moved to Hungary. So, but before that, let's start from very basics. And you done your graduation in LAMS, one of the very finest universities in Pakistan, specifically in Lahore. So, what was the thought process when you picked LAMS as your bachelor's degree? Because, to be very honest, when you're doing economics as a as a bachelor's, you know what you wanted to do. It's not a कि यार ख्वाब आया और कर लेंगे. Economics, people don't pick economics as a passionate thing. ठीक है, they really understand, okay, fine, economics is something that we wanted to do. So I wanted to know कि what was your thought process when you take admission in LAMS? Is it something कि आपने सोचा कि ठीक है यार, किसी और मेरा कोई cousin भी कर रहा है, किसी ने पहले से करा हुआ है और they are very successful, why not मैं भी कर लूं. पाक व्हील्स के ओनर ने करा हुआ है, तो इकोनॉमिक्स तो मैं भी कर लेता हूँ. ठीक है. सो बट हाउ वाज द डिसीजन मेक, क्योंकि a lot of Yeah. time what I personally believe कि, and also you are a Gen Z, ठीक है. So you have, I'm pretty much sure you have millennials, बहन भाई या cousins जो कि आपको बता रहे होते हैं कि यार ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, and a lot of information you already have before choosing that. So what was the decision that you finalized LAMS and economics? So back in my A levels, so this was, that starting point where I was researching a lot of universities. So basically, in that circle of A levels, all of us wanted to aim for higher education, particularly in the US. You can easily get not easily, but you can get full ride scholarships and early decisions, early action applications, that round of applications, giving your SATs, extracurriculars, and all that. So for me personally, I did want to go abroad in my undergraduate degree. And that is when I applied to a lot of US universities as well, and I did get into very good, prestigious colleges as well. But the cost of the scholarship wasn't enough to a point where I could sustain for 4 years instead of, like, masters for two. And at the same time, I had applied to LUMS and IBA as, top universities in Pakistan as backup. And that is when I wanted to go for something in humanities, primarily because I was also doing debates in A levels, and that is where that passion sort of came from.
However, I was an engineering student, so I had taken math, physics, chemistry, and all that. So I am from an engineering background, and that's why I'm still taking that mathematics base, forward as well here. So at that point, when we realized that okay, undergraduate degree abroad might not work, my parents were very supportive, and they really wanted me to go to LUMS as well. So for me, LUMS HSS Humanities School was my first priority. And I really wanted to do law as well. And law was like a second option, but I'm very glad to not do law and go into humanities. And in humanities, the basically the structure of LUMS HSS is very similar to US Liberal Arts College, where I had also gotten admissions. So because of that comparison, it was like I was, similarly in a US Liberal Arts College where I was given the freedom for 2 years to explore my major. So I was taking courses from all various fields, like political science, history, English, economics. And that is when in the process of it, you realize that, okay, economics and political science, then I realized was for me. So it was definitely a journey. And at the moment, I had to like compromise on, financial instability at the moment and go for LUMS, even though LUMS itself is not that affordable on self funding anymore. But at that point, this was something that my parents really wanted me to go for, and we somehow did manage it. So that is where Okay. that journey began. So basically, lumps were a very calculated risk. You wanted to go for your bachelor's outside Pakistan as well. And you have a proper sorted things. ऐसा नहीं है कि आपने lumps को just for the sake of करा. I'm pretty much sure if your parents are go for lumps, so they know the real importance कि ठीक है lumps will make it happen, because a lot of time parents usually don't have the clarity in our generation. आपकी generation Yes, में तो exactly. you are privileged enough कि your parents has this ability to understand कि okay fine, university बहुत matter करती है, किस university से कहाँ क्या पढ़ रहे हैं, and vice versa. In our Yes. time, it's totally different. Our time means as a millennial, our parents usually don't have. Not all the parents usually have this sense of realization, like how education will gonna change my children's overall future. ठीक है. I'm assuming कि कहीं ना कहीं वो point था कि you already wanted to go outside Pakistan for your bachelor's, so I'm pretty much sure it's also already sorted कि masters तो बाहर से ही होगा. ठीक है. One way or another. ठीक है. But nevertheless, you pick the second best option, that is LAMS, and it's a full calculated risk. After I listening your answer, it's a full calculated risk. It's not something I wanted to do this and I'm doing it without any research. We were fully research on that. Okay. Now moving back to, I'm pretty much sure 4 years in LAMS were like great. Graduated LAMS, okay. You worked before graduating in LAMS, okay. You work for different things. You work for LAMS. You work for different services. You work as a product analyst. You work for few times for associate business analytics while you were in LAMS. It's not about okay, you graduated and you do that. What was your thought process? Is it something that your teachers, that your mentor told? Because I really wanted to understand what's the real difference between a LAMS student and a normal student. People people know okay, there is a difference, but what is the difference? Do you जैसे आपने बताया ना कि the curriculum that you're following is the same as I think London school or किसी भी school में जो बाहर पढ़ाया जाता है. But what is the reality difference of a LAMS student or a different student? क्योंकि you graduated with almost 1.5 years of experience, professional experience, while you are in your university. Not everyone has this ability, or not everyone has this clarity in life. ठीक है. अगर मैं नॉर्मली लोगों से बात करूं, पीपल सी एज के 4 साल का ग्रेजुएशन, 2 साल का मास्टर बाहर से, फिर देखते हैं क्या करेंगे. या 4 साल का ग्रेजुएशन विल टेक 2-3 years ऑफ गैप, थोड़ा सा काम करेंगे और फिर उसके बाद मास्टर्स में चले जाएंगे. ठीक है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू टेक अ गैप, उसके दो सर्कमस्टांसेस होते हैं. या तो आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है, क्योंकि जब आप प्रोसेस में होते हैं ना पढ़ने के, तो आपका माइंडसेट वैसा बना हुआ होता है. ठीक है. Hmm. वंस यू स्टार्ट अर्निंग द मनी, यू somewhat lose interest in learning things. ठीक है. Hmm. Yes, पाकिस्तान से बाहर जाना, doing bachelor's master is a fancy thing. ठीक है. It will change, and it's not a fancy thing. I think it's a requirement of the time, because
टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तानी वीजाज इश्यूज, मल्टीपल इकोनॉमिकल इश्यूज, ठीक है, फिर आप एज अ पाकिस्तानी भी हो, फिर आप इंटरनेशनल कहीं अप्लाई करते हो, वो कहते हैं आपके पास इंटरनेशनल डिग्री नहीं है, दे आर लाइक मल्टीपल थिंग्स. व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस कि यार नहीं, बैचलर्स की डिग्री के साथ साथ काम भी करना है, ठीक है. आई एम अज्यूमिंग यू आर सॉर्टेड इनफ, यू आर स्टडिंग इन लम्स, तो ऐसा नहीं है कि यू आर इन फाइनेंशियल डेथ कि भाई ठीक है मुझे बहुत ही कोई मसले हैं फाइनेंशियली, ठीक है. एंड आई एम अज्यूमिंग यस योर पेरेंट्स, every parents do their best to for their childrens, but what was your thought process कि नहीं यार, I need to use my time very wisely while being in lumps, taking out time, because being in lumps or not, taking classes, working together, it's not that easy. A lot of time people reach out to me and they're like यार 24 घंटे बहुत कम पढ़ रहे, इतनी सारी चीजें. What was your thought process when you were doing that? So this was definitely something that did not come easy at all. In fact, the 4 years of LUMS weren't as easy or glamorous as some people paint on social media and all that. It's definitely not. It's something that was very difficult, and I did have a lot of, other goals that, perhaps other people don't know that I achieved or did not achieve. But basically, what really happened was, because LUMS is definitely academically very challenging, and at the same time you have other things going on in your life as well. I did hit a rock bottom in my junior year, literally. Like, I hit a rock bottom and I was like, okay, things can't get worse than this, and things got worse than they were, and I was like, okay, this is not working out. And then mentally I was just like going back in this loop that, okay, things will just get worse, and then things just got worse. And then that's when I realized that, okay, junior year is too early to like get into this negativity and to like ruin my experience, because I'm one of those privileged people who are, so lucky to be here, and I need to do something with it. So that is actually just how everything turned out. So I actually forced myself to, get out of that thinking and to simply, focus towards like enjoying small things in life, because it was very difficult to get out of that negative thinking once you go into it. So, and that is when I realized that, okay, that is when I've sort of focused towards my journey and my experience. And I used a lot of, YouTubers. There are a lot of good YouTubers who really helped me with all this. Listening to them, inspiring, yourself, put just challenging yourself, that is where, uh, that goal was to just push yourself out of the comfort zone. And because I was in that negativity of thinking and I was just in my comfort zone and that's it, so that wasn't really working out. So I genuinely just shifted the mindset, and alhamdulillah, like, I just simply started to, focus on the little things, and they really tried to, and things really genuinely improved for me. So, for example, someone can see that, okay, I have this professional experience, so on and so forth. But it's a funny story because um, I had applied to a lot of internships, and in LUMS, it's a, junior year internship is the main competitive thing where, okay, you have to, like go to a big name MNCs, Unilever, PNG, Reckitt, all that. And obviously, I was aiming for that as well. In some situations it worked out, made it to the last round, and then did not work out. And then there were other applications which were also open. So for example, Jazz and Nestle were open, and at the same time, I remember that year I was in Thailand at the time for a conference, and I missed my Jazz deadline. So I was like, okay, Jazz is also out of the window. What else? I need to secure a junior year internship. And then I went for Nestle, and then Nestle, I thought that, okay, the deadline is on 30th, but it was on 29th, and I missed on Nestle as well. And then I was like, okay, I just want to, find some internship, because this is the main internship before you graduate. And this is something that's very important on your resume, regardless of where you do your internship from. So that is when I actually came across some posts on LUMS discussion forum, which is our main LUMS communication channel. And I was able to find opportunities there. And somehow it worked out in a way that I was able to get an internship as a product analyst intern at Pursue Today for their AI startup Go Customer.
And in those 3 months, when I was actually, just doing that work, I was also, like managing my society, because I was also president of my society in Lums. And I knew that I always wanted to be in Lahore in my junior internship. So, like internships in Karachi, like Unilever, PNG. So that's why those weren't a priority for me, anyways. So, like those were in Karachi, and I just wanted to be in Lahore in junior year internship. And that somehow it just worked out in a way that once my internship ended, they did offer, a part-time position, and it worked out in that way. So highly unpredictable, never knew I was going to get it. um, and somehow it worked out for me in a way that I was like, okay, this sounds great, because now I can just, focus on like these things happening side by side. And you do mention financial stability, and alhamdulillah, I do come from financial stability, but I am middle class family as well. And I have seen my life go from, middle class to upper middle class now, alhamdulillah. So in that situation, I know the value of hard earned money, because my parents have done that. So, and both my parents are working, by the way. So I've seen my mom work hard, I've seen my dad work hard, and they've put in so much effort, that hard earned money is, where we acknowledge the hours we put, the work we do, and the reward we get. And that was also like my motivation, because when you receive that paycheck monthly, and that is where you get that happiness, okay, that my hard work was worth it, and I can actually just do things to sustain myself. So because my parents were very supportive, they always encouraged to save and like manage everything accordingly. And that is how it worked out for me, so I was able to sustain my own expenses rather than relying on them. And that is how it went about it. So definitely the professional experience wasn't something that I was expecting, but somehow it worked out in a way that actually suited my life, while also getting rejections from Unilever, PNG, and Reckitt. So yeah. Okay, so I have first of all, really appreciate that at your age you have this maturity in you to understand that your parents are doing their everything hard to make you something out of the box. Number one, this is very good. Students and children should respect that to earn that respect. Either they are in Lums or either they are in any city universities. Nevertheless, okay, if your parents are putting that much effort, you should respect that. I really appreciate that you know that at your age. A lot of people at your age is like it's this is a very different age where वो लोगों को डर ये होता है कि ज़्यादा एक्सपोज ना कर दें, कम एक्सपोज ना कर दें। ज़्यादा एक्सपोज करने से कहीं बच्चे बिगड़ ना जाए, कम एक्सपोज करने से कहीं उनको बाद में मसला ना हो कि यार वो इतने ज़्यादा एक्सपोज ही नहीं हो पाए कि उनको समझ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस एटीट्यूड, इट्स अ वेरी गुड थिंग। सेकेंडली मुझे पहले ये बताओ कि यू बेसिकली फ्रॉम लाहौर और बेसिकली फ्रॉम कराची? No, I'm from Lahore. Okay, perfect. So that makes sense कि you are going to Lams and assuming Yeah. कि आपने जो अभी बताया कि स्ट्रक्चरली पीएनजी यूनिलीवर में काम करने का फ़ायदा ये होता है कि इंटर्नशिप के लिए कोई बंदा पाकिस्तान की कराची की कंपनी के लिए काम करे, फिर वो हाइब्रिड मॉडल होगा, फिर उसमें रियलिटीज़ में पता नहीं हम मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो वो वाली बात भी ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे आज पता चली, ठीक है, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि शायद यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होगा लम्स में और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में। द पैशन दैट यू वर अभी टॉकिंग अबाउट फॉर द इंटर्नशिप, ये पैशन मैंने बाकी किसी यूनिवर्सिटी के बच्चों में नहीं देखा। To be very honest, they just going out making fake internship certificate, and I'm recording it. I'm saying it on a call. Universities know that कि internship certificate fake है. बच्चों को पता होता है internship certificate fake है. I'm not sure कि why internship का course भी रखा जाता है. It's just a bullshit thing throughout the universities जितने लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है. But your passion, क्योंकि वो एक चैलेंज होता है, क्योंकि यू हैव टू प्रूव योर अदर क्लासमेट्स के आई ऑल्सो गॉट एन इंटर्नशिप, ठीक है। सो हैविंग दैट फेथ एंड हैविंग वर्किंग फॉर दैट गिव यू एन आइडिया, ओके फाइन, असली में जॉब हासिल करने की जो छोटी मेहनत है वो ऐसी होती है, ठीक है। मतलब दिस इज हाउ आई सी इंटर्नशिप, ठीक Yes, है। exactly. इंटर्नशिप Hmm. इज बेसिकली द नेक्स्ट प्रैक्टिस ऑफ गेटिंग अ रियल जॉब, ठीक है। आप सब चीजें सेम करते हो,
बट हर चीज बहुत लोअर लोअर मीडियम पर होती है, ठीक है। इट्स लाइक प्रैक्टिसिंग ऑन अ स्लो पेस बॉल। लेकिन जब आप जॉब कर रहे होते हो तो फास्ट पेस यॉर्कर भी आएंगी, बमर्स भी आएंगे, आपको हर चीज देखनी होगी। इंटर्नशिप क्या होता है, इंटर्नशिप में जब आप इतने इतने एक्साइटेड होते हो, इतने कोशिश करते हो इन चीजों के लिए, तो आपको वो चीजें कुछ चीजें पहले पता चल जाती है। ओके, अच्छा सीवीज ऐसे भेजनी है, इस तरीके से बात करनी होती है, इस तरीके से रीच आउट करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी आपने बताई कि ट्रैक ट्रैक योर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यार आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कोई चीज करनी है, बट उसका टाइम क्या है, वो किस टाइम Mm. पर होगी, क्या मैं उस टाइम तक रेडी होंगी नहीं होंगी। और एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मुझे लगता है कि लोग लोग मिस करते हैं। शायद मिलेनियल्स में बहुत बड़ा मसला था, बट जेंजीज हैव दिस एबिलिटी, दे हैव एबिलिटी टू एक्सेप्टेंस, कि अगर कोई चीज निकल गई है, ठीक है, एक्सेप्ट करो उस चीजों को कि वो चीज नहीं हो सकती, एंड दे मूव टूवर्ड्स अनदर पाथ, कि ठीक है अब ये नहीं हो सकता, अब देखते हैं कि अभी के हिसाब से क्या चीज बेहतर है। एंड आई थिंक दैट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग दैट गिव्स यू द क्राइटेरिया कि यार ठीक है आप यहाँ नहीं, अब आप यहाँ पे काम करेंगे, और अल्लाह ताला ने वो चीजें प्लान करी हुई होती हैं। क्योंकि जब आप नेगेटिव Exactly. सोचते हो, मुझे ऐसा लगता है कि योर थॉट इज बेसिकली वॉट यू गोना डू। अगर आप सोचोगे कि आप गिरोगे, तो आप एटलीस्ट आप अपने दिमाग में गिर चुके हो, उसको सिर्फ फिजिकली Yeah. हैपन होना जरूर, फिजिकली होना जरूरी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सोचोगे ना यार मुझे जॉब मिलेगी नहीं, तो आप लिटरली अनएम्प्लॉयड हो, बस आप उसको अभी शोकेस नहीं कर रहे हो, ठीक है। पर जब आप उसमें Exactly. मेहनत कर रहे हो, तो चीजों को कर रहे हो, तो आई थिंक रियलिस्टिकली थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आप लोगों के अंदर बहुत अच्छा है। आप लोगों से हमें सीखना चाहिए, बाकी सबको सीखना चाहिए कि यार नॉट इवन अ गर्ल, नॉट इवन अ बॉय, बी ऑन अ वेरी रियलिस्टिक फिगर्स, ठीक है, क्योंकि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत अलग है। Exactly. प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ घुसनी नहीं चाहिए, आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है यार, आ, ये आज के दिन की डेडलाइन थी, ये मिस हो गई, उस पर फोकस कर, उस पर रोने से अच्छा है किसी और चीज पे फोकस करते हैं, डू दैट। सो आई थिंक इट ऑल वर्क्स इन अ वे के सबसे अच्छी बात है कि आपने यूनिवर्सिटी के टाइम में करा, सही है। मुझे अब ये बताओ, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू डू इज, वन ऑफ द टॉप टियर यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ठीक है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी होगी, बट वो फिर भी किसी लेवल में बराबर नहीं हो सकती बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी के भी, ठीक है। Assuming कि बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी भी टॉप 5% यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑक्सफोर्ड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हार्वर्ड, ठीक है। डू यू थिंक कि यूनिवर्सिटी से फर्क पड़ता है, या बंदे को अपने आप पर मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि ओवर देयर, ठीक है, ओवर ओवर व्हाट आई सी इज ओवर इन लम्स, सबको पता होता है कि वो एक ही क्राइटेरिया पे, मतलब वो कहीं ना कहीं उन्होंने ए लेवल्स में उतने ही ग्रेड लिए हैं, उतनी ही परसेंटेज है, उतना ही मेरिट क्रैक किया है, उतने ही पैसे दिए हैं फीस के, ठीक है। इंटरनेशनली हर चीज अलग है। यू विल बी Yeah. सिटिंग विद अ पर्सन जो फुल फुल टाइम स्कॉलरशिप पर होगा, और आपके बराबर में बैठा वाला बंदा ऐसा भी हो सकता है जो पूरे पैसे दे रहा हो, Yeah. ठीक है। Exactly. आप इतने प्रिविलेज लोगों को देख रहे होते हैं जिनके वीजा सॉर्टेड होते हैं, क्योंकि उनके गवर्नमेंटल इश्यूज ही नहीं होते, ठीक है। और अगर जब आप उनको एक स्टोरी सुनाते हो, बिकॉज आई हैव डिबेट विद अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड दे वर लाइक यार हम जब स्टोरी सुनाते हैं ना कि हम यहाँ कैसे आए, अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स आर इन यूके, सिंगापुर, यूएस, ठीक है, फॉर देयर मास्टर्स, एंड दे वर लाइक कि जब उनको बताते हैं ना इतनी मुश्किल से इतनी मरतबा ट्राई करने के बाद 2 मरतबा वीजा रिजेक्ट हो गया, फिर ये करा फिर वो करा, एंड वो लोग Yeah. बोलते हैं कैसे यार, हमारा तो बहुत सिंपल है, बैचलर्स करा तो भी हमने बस ये करा, ये पेपर वर्क दिया, हम यहाँ आ गए। तो क्योंकि बाकी दुनिया में चीजें बहुत सॉर्टेड है एजुकेशन की, ठीक है। Yeah. उनका उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इसलिए सॉर्टेड है क्योंकि उनके बच्चे जो कर रहे हैं उन्होंने अपने लिए करा होता है, फिर उनके पेरेंट्स ने उनके लिए करा होता है। आई थिंक जैसे अभी अब ये चीज हमारे यहाँ चेंज होगी कि जेनजी, जैसे आप लोग जब बड़े हो गए ना, तो आपको पता होगा कि यार मुझे अभी से सेव करना है, क्योंकि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो उनको इतने बड़ी अमाउंट चाहिए होगी, ठीक है, फिर वो Yeah. चेंज चलने लग जाएगी, ठीक है। उससे पहले ऐसा नहीं था। What are the key main changes in an education system that you've seen in this 40 days? कि यार ये पाकिस्तान में होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहला जो हार्ट अटैक या सबसे पहले जो रियलिटी चेक मिलता है ना, आप कहते हो यार इंसान की इतनी भी अहमियत हो सकती है, और फिर आपको पता Yeah. चलता है ये तो नेसेसिटीज है। इसको और इसको तो करने के लिए कोई चीज लग भी नहीं गवर्नमेंट की, यार गवर्नमेंट नहीं करती तो कितना अच्छा है, ठीक है, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी रियलिटी दूं, ई चालान लगे पाकिस्तान में, ठीक है, Yeah. I've heard. वो न्यूज है पाकिस्तान में राइट नाउ, ई चलान इज द न्यूज। इंटरनेशनली दुनिया के अंदर ई चलान सालों से है,
Hmm. ठीक है, बट Yeah. हमारी हर चीज की न्यूज होती है। तो आपने इन 40 दिनों में क्या चीज देखी यार कि एजुकेशन वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज ये बड़ा डिफरेंस है बुदापेस्ट में और पाकिस्तान में? Sure. I feel like firstly, LUMS is very academically challenging, like I mentioned before as well. And I feel like वो जो एक रगड़ा खा लिया हुआ है ना LUMS का, that is something हम्म, that you will take far in life because LUMS pushes you out of your comfort zone in a way that even after you graduate, you value it. But when you're going through it, it's actually very exhausting. And it's very academically workload wise, it's very 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 tough. So at the same time, I feel that on a comparative, the education, I don't want to say it's easy, but I do want to say that the education is designed in a way where it doesn't exhaust the student as much. And I think that's primarily that has to do with our Pakistani universities and the competition there as well. So so yeah, and in LUMS, obviously the instructors are very, very, very professional, very experienced, very nice. But at the same time, the university administration has more power when it comes to, accommodating students, for example, petitions, and, if there's some like, if they're sick, the petition for that and all that process. But here in my university, professors are accommodating, and you just talk to your professor. There is no administration directly that you have to go to, and most of the time they're very open and very accommodating in my experience right now. And obviously because Budapest Metropolitan, it's obviously a very big university, and we do have 4 campuses, but in very very big classes with big size, so they do have online classes as well. And that in itself is really helpful because for me in these 40 days when I was adjusting to everything, getting groceries and just fixing up my space and everything, that really helped because it doesn't put you under that much pressure that, oh, I have to go and attend a class and just like do that the way it was in LUMS, and attendance is mandatory and all that. So honestly it just depends. Like in LUMS, it used to depend instructor to instructor, course to course, whether there was going to be attendance mandatory and all that. So here I realized that some professors are particular about attendance, but most of them primarily are not that. They just care more about our final exam performance and our projects. So naturally, different forms of evaluations exist here and there as well. But in these 40 days, definitely I feel that LUMS, for example, gave me that freedom already. So I was already coming from that experience of like managing everything on my own, being empowered, and just navigating everything. So that definitely helped. But now that I came here, I realized that okay, uh, the city is also like part of the experience of the university. But in LUMS, it was more just your char diwari, right? And LUMS itself is very big, so it was like a big privilege to okay, walk around and just simply like even be there late at night. You always felt safe. However, outside LUMS, you could never feel safe in Lahore and all that, not at least like in that comfortable way anyways. So for me, like I think that is a big change because here it's definitely very safe, and you don't and you see so many people on the road here and there. There's this phenomena ke like, oh, Lahore and in Pakistan, this idea of invisible women ke like, आपको इतनी ज़्यादा औरतें सड़क पे नहीं नजर आती. So like here it's so opposite because like it's such a small city with like a fraction of the population, but I think Budapest has more women than men, and you see 60-year-old grandmas walking alone, carrying their groceries, doing everything. And it was such like a big cultural shock to me that, oh, like I can never see this in Pakistan. Like in Pakistan, this would have probably been happening in a car, and like we don't really have that lifestyle anyways. And for me, I was just really, really shocked. When you're crossing the road, there's a proper road sign for, crossing, pedestrian crossing, and people respect that. And you were like, oh, like, I'm respected here. However, in Pakistan, if you had to cross a road, especially as a woman, you wouldn't know how difficult that really is. So I yeah, think I think I think these are the
यू आर राइट टोटली। जो भी अभी आपने बात कही है ना, दीज आर नेसेसिटीज। Yeah. पता नहीं क्यों पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं है। क्योंकि अभी तक व्हाट आई सी के, क्योंकि ना आपको शौक इस चीज़ का होता है कि यार इस चीज़ को करने के तो पैसे भी नहीं लग रहे। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग जेब्रा क्रॉसिंग, वो तो यहाँ पे भी है। उसको फॉलो करने के लिए रूल लगेगा, लेकिन उसको बनाने के लिए कोई पैसे नहीं लग रहे। वो Hmm. इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। बट वो छोटी छोटी चीजें आपको बहुत सारा आपका माइंडसेट चेंज करती हैं, ठीक है। Security is one of the very big concern, because when you are living in a country जहाँ पे मल्टी कंट्रीज से लोग आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आके पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेरी मेन रीजन कि पाकिस्तान में कोई आके नहीं पढ़ता, क्योंकि अगर कोई आके पढ़ेगा तो इनको भी वो चीज़ें वैसे करनी पड़ेंगी। बाहर जाएं, यूएई की बात करें, खैर यूएई की मैं इसलिए बात नहीं करता, यूएई तो खैर इज वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, बट I see it ke when there are countries who has multilingual or multi nationalities वाले लोग, they need to follow this pathway, क्योंकि आपके लिए वो नया है, बट आपकी क्लास में बैठे हुए बाकी 100 लोगों के लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल है, ठीक है। Yeah. It's like when you are moving to a state or moving to a place where there are left hand drives, उनके लिए वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल होती है, आपके लिए बहुत डिफरेंट होती है, बिकॉज द होल रोड स्ट्रक्चर इट चेंजेस फ्रॉम अ 90 डिग्री, वो बिल्कुल पलट जाता है। आपकी हर चीज़ जो लेफ्ट पर होती है वो राइट पर होती है, जो राइट पर होती है वो लेफ्ट पर होती है। देन इट कम्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री एंड द स्पेस एज वेल, क्योंकि I personally think why education system are growing much better outside Pakistan, because अगर आपने थ्री इडियट्स देखी, उसमें कहते हैं ना कि पढ़ाने का तरीका कैसा होता है, दैट मैटर्स। पढ़ाना क्या है वो तो सबको पता है, वो तो आपको बुक में से पढ़ाना है, ठीक है। द Also, just one thing I wanted to add, particularly in the comparison. So, there's also this misconception that oh, LUMS is just elite students and all from rich backgrounds. Like LUMS NOP initiative and people from diverse places come to LUMS, and I think I was already sort of like used to that experience of diversity. So when coming here, I'm not that, shocked at like seeing a lot of diversity here. So like for example, if नहीं, someone is on a scholarship, एग्री someone is on a self-funded. एग्री एग्री। Yeah. दिस इज नॉट द चेंज। सो बेसिकली ये तो एक इंटरनल कम्युनिकेशन होती है कि आप Yeah. स्कॉलरशिप पर हैं या पूरे पैसे दे रहे हैं, ठीक है। एक बड़ी छोटी सी चीज है कि जब आप लम्स में होते हैं तो आप जो डाइवर्स कल्चर देख रहे हैं, तो आपसे नीचे का डाइवर्स कल्चर होता है, ठीक है, कि पीपल आर कमिंग फ्रॉम Yeah. डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। जब आप बाहर जाते हैं तो आप उस जगह पर होते हैं जहाँ पे आप लोगों को देख रहे होते हैं, एंड नाउ पीपल आर देयर जो Exactly. आपसे उसकी आपकी पुरानी पोजीशन पर है। पोजीशन की बात मैं कर दूं, क्योंकि कुछ चीजें बहुत चीजों की बहुत लोगों के लिए नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, जहां से बात करी Hmm. आपने कि एजुकेशन सिस्टम, तो बाहर जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, दे फॉलो अ सिंपल रूल कि यार एजुकेशन मिल रही है, लेने वाले को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है। मीडियम कुछ Hmm. भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मीडियम बाय रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, बाय इन क्लास हो, कुछ भी हो, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए कम यूनिवर्सिटीज रूल बनाती है कि रिटन एग्जाम्स हैं और ये सारी चीज़ें, वो अलग बात है। बट एजुकेशन का जो मेन पर्पज है ना, वो एजुकेट होना है, ठीक है। मीडियम कुछ भी Hmm. हो सकता है, सही है। बेशक वो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि यस, रेगुलेशंस आर इम्पोर्टेंट, बट वाई रेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, ठीक है। Hmm. इन पाकिस्तान इट्स लाइक कि नहीं, आपने 5 क्लासेस मिस कर दी, आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। Hmm. आउटसाइड पाकिस्तान, दे आर जस्ट गिविंग यू द क्लासेस। आप क्लासेस लोगे तो आप इतने केपेबल बनोगे कि आप टेस्ट दे सको, नहीं दे सकोगे तो वैसे ही फेल हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, Exactly. दूसरा ये है, पाकिस्तान में हम थोड़े से बगैरत भी हैं, सॉरी फॉर द वर्ड, बट Mhm. हमें ना, हम थोड़ा सा काहिल वजूद हो जाते हैं, क्योंकि पीकेआर में पैसा जा रहा होता है ना, ठीक है। जब आपको जिंदगी में पहली मरतबा ये हिट लगता है कि मेरा पैसा करेंसी एक्सचेंज होने के बाद इतना बुरा है कि मुझे कितना पैसा डालना पड़ेगा, तो जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो आपको पता चलता है कि यार मेरी जिंदगी का पर मिनट इतना महंगा है, ठीक है। Yeah. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 साल पढ़ रहा हूँ, ठीक है, और मैं 2 साल में पाकिस्तानी 60-70 लाख या 80 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो तकरीबन मेरा महीना भी कोई
1 लाख से ऊपर का बनेगा, 1 लाख से ऊपर का सिर्फ महीना। तो इट मीन्स कि अगर मैं एक क्लास ले रहा हूँ तो वो भी कम से कम 25-30 हजार रुपए की एक क्लास है। सिर्फ वहां रहने के पैसे भी हैं, पढ़ाई के पैसे अलग है, बाकी खर्चा अलग है। तो आप थोड़ा सा ना लाइन में सीरियस भी हो जाते हैं कि भाई ठीक है। एग्जैक्टली। क्योंकि अगर देखा जाए तो आयशा जावेद जैसे बहुत सारे लड़का लड़की हैं जो पाकिस्तान में उठ के पानी नहीं पीते। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं दुनिया का सबसे काहिल वजूद तरीन इंसान था जब मैं पाकिस्तान में था। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे अम्मा अब्बा ने हमें रखा है ऐसा। ठीक है। हम घर के बड़े हैं, हम आवाज देंगे कोई पानी ला के दे देगा। यू गो आउटसाइड पाकिस्तान एंड देन यू रियलाइज के टाइम मैनेजमेंट उनको हमसे बेहतर गोरों को इसलिए आता है क्योंकि उनके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उन्होंने 9 to 5, 9 to 5 को 9 to 5 वो इसलिए 9 to 5 कहते हैं क्योंकि 5 बजे के बाद 6 बजे उसने कपड़े धोने, 7 बजे खाना बनाना है, 8 बजे खाना खाना है, फिर जिम जाना है, फिर सो जाना है। पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। पाकिस्तान में काएगा 9 to 5, पाकिस्तान में घर जाके भी उसने काम ही करना है। घर पे कोई भी उसको खाना ला के दे देगा, करना उसने कपड़े धोने। तो बहुत सारी रियलिटीज होती है। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ के बीइंग अ गर्ल 25 ईयर ओल्ड, अज्यूमिंग कि आप जेंजी हो तो 25 से ज्यादा तो नहीं होगे। ठीक है। अ, क्या लगता है कि पाकिस्तान में कौन से ऐसी चीजें जो आप अगर पहले से सीखते तो आपके काम आती? क्योंकि कुछ स्केल पे ना प्रॉब्लम सॉल्विंग ना हमें पता ही नहीं होती, क्योंकि आप सराउंडेड बाय गार्ड्स होते हो ना, कि अब्बू हैं, भाई हैं, कजन्स हैं, अम्मी हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क। मतलब ऑटो पायलट पर होता है लड़की का जिंदगी मेरे ख्याल से। शादी हो जाए तो या शौहर के ऑटो पायलट पर होता है, शादी नहीं होती तो माँ बाप के ऑटो पायलट पर होता है। ठीक है। बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग खुद ले सके। ठीक है। और हम्म। मैं बात कर रहा हूँ ए लेवल्स, ओ लेवल्स या इंटरमीडिएट के बाद, क्योंकि उससे पहले के डिसीजन लेके वैसे भी आप क्या करेंगे दुनिया को पता है। आपने स्कूल पढ़ना और आपने कॉलेज पढ़ना, ये तो रूल है, ये तो बेसिक है। क्योंकि या नेसेसिटी चेंज फ्रॉम बीइंग अ कॉलेज ग्रेजुएट टू अस यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। ठीक है। अब बैचलर्स, या बैचलर से कम वाले को ऐसे देखा जाएगा व्हाट, क्योंकि बैचलर्स तो एक स्टैंडर्ड बन चुका है। बैचलर्स के ऊपर आपने क्या करना है वो अलग बात है, लेकिन बैचलर्स का फैसला आपके हाथ में। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। आपको क्या या लगता है जब आपने वहां देखा, भी 40-50 दिन में देखा, आपने पूरी जिंदगी के ऑलमोस्ट 23-24 साल पाकिस्तान में गुजारे हैं, नाउ यू आर इन हंगरी, वेरी डिफरेंट कंट्री। ठीक है। और जिंदगी के 2 साल यहाँ दोगे, लेकिन आई कैन बेट यू, आई कैन बाउट फॉर इट, 2 साल हंगरी के आपको इतना कुछ सिखाएगा जो आप पाकिस्तान के 23 साल 24 साल में नहीं सीखेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप अकेले सीखेंगे। तो पहले आप प्रॉब्लम वेरीफाई करेंगे और फिर सॉल्यूशन भी खुद ढूंढेंगे। इट्स नॉट पाकिस्तान के प्रॉब्लम सोचने के बाद अम्मी को आवाज मारी और अम्मी ने सॉल्यूशन दे दिया, अब्बा को आवाज मारी, अब्बा ने सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है। या और ना बहुत कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, क्योंकि आप जितना इमोशनली स्टेबल हो जाते हो ना बाहर जाके, क्योंकि आपको थोड़े दिन बाद जाके लगता है कि अगर मैं रो रही हूँ या अगर मेरा बुरा वक्त है तो मैं घर पे नहीं बता सकती, उनको प्रॉब्लम होगी। तो आप कितने एग्जैक्टली। इमोशंस, कितनी चीजें अपने हद तक रखते हैं, अपने अंदर रखते हैं, जस्ट इन केस कि यार ये लाइफस्टाइल मैंने चूज करी है, तो इसका प्लस भी मेरा है तो इसका माइनस भी मेरा है। एग्जैक्टली। ऐसा क्या अगर आपको मैं कहूँ कि एक लिस्ट बताओ कि उमेर ये वो 4-5 चीजें कि अगर लड़कियों को या लड़कों को बचपन से सिखाई जाए तो उनको अकेले रहने में फायदा होगा। जैसे मैं अगर अपना पॉइंट बताऊं एक, तो बचपन से बच्चों को कचरा फेंकने की आदत डलवानी चाहिए। क्योंकि हम्म। मुझे कचरा फेंकना नहीं आता था, मुझे कचरे का पता ही नहीं था कि मेरे घर में कहाँ होता है। मुझे सिर्फ ये पता था कि मैं जो खाऊंगा मैं वहां रख दूंगा और कोई आता है और वो साफ कर देता है। जब मैं या यहाँ आया तो मुझे पता चला ओके कचरा फेंकना एक जिम्मेदारी है। कचरा नहीं फेंकते तो घर में बदबू आएगी। ठीक है। तो एनी पॉइंटर्स, आई नो इट्स अ कॉमेडी थिंग बट इट्स अ वेरी रियलिटी यार, आपको बहुत सारी चीजें अपने अंदर एग्जैक्टली। लानी पड़ती हैं। तो या आपको क्या लगता है कौन से ऐसे ट्रेड ऑफ्स होने चाहिए जो लोगों को पहले से उन पे मेहनत करनी चाहिए, बेशक वो पाकिस्तान से बाहर जाए ना जाए, लेकिन वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट बना देंगे? आई फील लाइक पर्सनली फॉर मी, आई मीन मैंने एटलीस्ट 1-2 years में काफ़ी ज़्यादा चेंज नोट की है पाकिस्तान में, विच आई रियली अप्रिशिएट इज के बिकॉज ऑफ ई बाइक्स एंड ई स्कूटर्स, वी डू हैव females are, feeling empowered to वी डू हैव ई बाइक्स इन पाकिस्तान। e-bike. Yeah, we do now. So वाओ। like in the past 2 years, काफी improvement आई है, and you see a lot of women, doing their own chores. So I feel like that is one thing that really makes me happy. कि अच्छा they feel, that they feel confident enough to like go.
डू देयर ओन चोर्स, उन्होंने काम पे जाना है, उन्होंने जिस तरह भी करना है, ग्रोसरी लेकर आनी है, व्हाटएवर, एक छोटा सा फॉर सवाल व्हाटएवर है, पर्पस। सॉरी टू कट यू ऑफ, बट इस या जगह पे मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ आपका क्या पर्सपेक्टिव है। आप कह रहे हो कि पिछले 2 साल में लड़कियों ने काम करना शुरू करा है और लोग अपनी तरफ से काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने मतलब अपनी खुशी से काम करना शुरू करा है, या इकोनॉमिकल इश्यूज ने इतना बना दिया? क्योंकि अज्यूमिंग आई फील अज्यूमिंग कि अगर लाइक पहले ऐसा होता था कि एक बंदा काम करता था और 4 लोग खा सकते थे, आपको लगता है पाकिस्तान में वो लाइफ स्टाइल एक बंदे की इनकम से हो सकता है? दैट ऑल्सो डिबेट, नहीं मतलब वन मतलब so I दैट्स come from a two-income household हाँ, anyway, so मतलब मैं वही कह रहा हूँ। देखो आप जैसे फॉर एग्जांपल, ये भी ना एक डिबेट का हिस्सा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल yeah. आप हर चीज को पॉजिटिव देख दो, लेकिन आप उसको ये भी देख दो क्या वो वाकई में पॉजिटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल कराची के अंदर ग्रीन लाइन बनी, तो देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक वो जो कहते हैं कि वाह गवर्नमेंट ने क्या काम करा है, और एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि यार 50 रुपए में बनने वाली चीज 5 करोड़ में बनाई है, तो क्या ही फायदा। Hmm. ठीक है, सो Yeah, वी नीड so टू अंडरस्टैंड कि क्या हम वाकई में तरक्की वाला तरक्की कर रहे हैं या मजबूरी वाली तरक्की कर रहे हैं। तो नाउ यू कंटिन्यू। हाँ ठीक है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है और लड़कियां बाइक चला रही हैं और अपना काम भी कर रही हैं। no, I think it's still something that's very appreciable, because usually like जिस तरह से हम इस environment में हैं, जिस तरह हम like we're so used to कि अच्छा इस तरह से you're not used to seeing women do their own work and their own chores in a city, because I'm from Lahore, so at least मेरे लिए this was like a new change, and I'm sure when I go back in the next 2 years, this change will be much more bigger. So I don't know about things right now. But yeah, no matter what, it's something so normalized here. It doesn't matter if it's happening now. It's just I'm glad that it's happening now. Like if not now, then when? तो चाहे वो मजबूरी से है या चाहे वो it's a step forward. It's still a step forward at the end of the day. So yeah, I think this was one thing. Apart from that, I feel like my parents were very supportive in a way कि like मेरे पापा ने बचपन तो खैर नहीं, but like teenage years में driving सिखा दी थी and all that. तो वहाँ से भी like I was already used to like navigating my own stuff and everything. बट बेसिक नेविगेशन आपको यहाँ पर आके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, वैसे आपको एयरपोर्ट्स अपनी अकोमोडेशन पे जाना है और फिर उसके बाद आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ. आई फील लाइक बेसिक नेविगेशन एंड नोइंग हाउ टू नेविगेट अ सिटी इज सुपर इम्पॉर्टेंट, एंड इट गोज लाइक चाहे आप लाहौर में हो, आप कराची में हो, कहीं भी हो. तो आपकी रिलायंस टेक्नोलॉजी पे थोड़ी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए टू अ पॉइंट वेयर यू कैन बी लाइक ठीक है मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, श्योर आई कैन आस्क समवन with using a translator or whatever, but still you have to like be a little bit independent in that. So there was that. And then um so I have also like traveled abroad even before going to masters, so I think my parents were sort of like confident that okay, Aisha kar legi because ye pehle bhi gayi hui hai abroad and all that. But for people who are going there for the first time ever in their life, unke liye it can be definitely extremely daunting, because like मेरे perspective से तो I was already like used to that. Immigration हो गई, आपकी पाकिस्तान की immigration हो गई, abroad की immigration हो गई, फिर उसके बाद थोड़े बहुत documentations here and there. But what really helped in that moment was कि मैं Ministry of Foreign Affairs अपनी attestation खुद कराने गई थी. And I think that is the one of the most you can say horror movie. It was a horror movie experience, because आप बस 2 घंटे खड़े हो, टोकन लिया, घंटा फिर से वेट ये किया बहुत ये बहुत और इम्पोर्टेंट वेट किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता किए. है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जब आपके माँ बाप आपको पुश करते हैं उन चीज़ों के लिए कि नहीं यार, दिस इज समथिंग दैट यू वांटेड टू, यू हैव टू डू। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है कि अगर आप अपने बच्चों को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट इदारों में उनका काम करने के लिए उनको खुद भेजें विद अ प्रॉपर या गाइडलाइन। ठीक है, क्योंकि जो रियलिस्टिकली लाइफ आपको सिखाता है वो आपको टीचर नहीं सिखाता। ठीक है, एक वीडियो देखकर सीखना कि नादरा के ऑफिस जाना है, आपको ये चीजें जमा करानी और आपका आपका एनआईसी बन जाएगा,
वो सिर्फ वो वीडियो में ही अच्छा लगता है, रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोफा, एग्जैक्टली। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की बात करें या किसी भी तरह की बात करें, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाना या कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको ट्रेड ऑफ सिखानी चाहिए। आई एम वेरी ग्लैड दैट योर डैड डिड दैट, कि नहीं यू डू इट, मतलब आप जाओ बिफोर यू 25 यू ट्रैवल। ठीक है, क्योंकि जो वो ओवरवेलमिंग वाला हिसाब होता है ना, वो जिंदगी में थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली। दिस इज व्हाट आई बिलीव, कि जब आप जिंदगी में पहली मरतबा ट्रैवल करते हैं ना, तो एवरीथिंग लुक्स वेरी ह्यूज। ठीक है, द एयरपोर्ट या लुक्स वेरी ह्यूज, एवरीथिंग वाज वेरी अनवेलमिंग। यार ओके फाइन, मैं सही लग रहा हूँ नहीं लग रहा, क्या मैं सही स्मेल कर रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं वो चीज़ भूल तो या नहीं गया। स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर बीन इन टू दैट, कि ओके फाइन, इट इज नॉर्मल, ओके फाइन, बिल्डिंग्स आर नॉर्मल, पीपल आर नॉर्मल, इमिग्रेशन इज नॉर्मल। या ठीक है, क्योंकि पहली मरतबा जब भी आप इमिग्रेशन पे जाते हो ना, तो आपका दिल धक धक होता है, क्योंकि आपने आपने या ना वो फिल्में देखी होती हैं, यार ये क्या मुझे साइड पे कर देंगे, फिर मुझसे क्या सवाल पूछेंगे, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ यहाँ पे, वाइस वर्सा। वंस यू एग्जैक्टली। पास दैट, यू आर ऑन अ वेरी गुड नोट। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब आपको आपके पेरेंट्स इतना पुश करते हैं कि यार इन चीजों को करो, क्योंकि कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस ना वो आपके अपने ही होते हैं। ठीक है, वो एग्जैक्टली। हर बंदे के अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू हॉस्पिटल, ठीक है, फॉर द या फर्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू गो फॉर योर, मुझे ऐसा लगता है कि दो तीन पॉइंटर्स हैं जो कि होने चाहिए। लाइसेंस अब बंदा अपना खुद बनवाए जाकर, विदाउट एनी या कंसर्न, क्योंकि उसमें किसी की जरूरत नहीं होती। वो आपको सिखाएगा, वो आपको पाकिस्तान का ना वर्ष से वर्ष और अच्छे से अच्छी चीज सिखाएगा, कि वहाँ किस या तरीके से आपको पब्लिक स्पीकिंग करनी है। आप ये भी देख रहे होगे कि यार मैं तो लाइन में लगी हूँ इतने टाइम से, किसी ने लाइन तोड़ के आगे आ गया, अब या मैं इतनी अच्छी बंदी हूँ कि मैं तो उसको नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे अंदर बुरा भी लग रहा है। ठीक है, फिर आप वहीं पे कुछ उन्हीं उन्हीं दरमियान में कुछ अच्छे लोगों से मिल जाओगे, जो आपको कहेंगे कि आप गलत जगह खड़े हो, आप वहां चले जाएं। और ये हुआ होगा, ये हर बंदे के साथ हुआ होगा, आपके साथ भी रियलिटी में कहीं ना कहीं हुआ होगा, कि आप खड़े होगे, आपको लग रहा होगा आप सही, कोई आके आपकी हेल्प आउट कर देगा, क्या वहां चले। दैट गिव्स यू ह्यूमैनिटल राइट, यार दुनिया में अच्छे और बुरे लोग दोनों हैं, इट्स मी टू या जज। ठीक है, अच्छा प्रोसेस इस तरीके से काम करता है। जब आपको प्रोसेस पता चल जाता है ना, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि सही है, मैं सही जगह खड़ी हूँ, मैं दूसरों को गाइड कर हम्म सकती हूँ। ठीक है, दिस इज हाउ यू सी। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि व्हेन आई वाज न्यू इन यूएई, तो मैं हमेशा उस तरफ पे था जहाँ मैं लोगों से रास्ता पूछता था। हम्म ठीक है, और मैं ये बोलता था कितना मुश्किल है यार ये मेट्रो में बैठना, कौन सा सिग्नल कहाँ उतरता है और कौन सा मेट्रो स्टेशन कहाँ उतरता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने एक चैलेंज लिया, मैंने कहा कि मैं एक दिन ना छुट्टी लूंगा और मैं पूरे मेट्रो में घूमूंगा। मैंने पूरा मेट्रो का प्लान बनाया, अच्छा यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेट्रो चाहिए होती है। तो मुझे पता चला कि रियलिटी में डिजाइन इतना सिंपल हुआ हुआ है, बस या मैंने फोकस नहीं करा। तो अगर मैं पहले फोकस कर लूं, ठीक है, तो अब क्या होता है, अब लोग मुझसे पूछते हैं मेट्रो स्टेशन पे, यार हमें यहाँ जाना है, तो मैं कहता हूँ देखें आप यहाँ, तो आप उनको भी, तो आप खुद देखना, आप खुद भी उनको गाइड कर रहे हो, तो ये देखें आप या यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर आपको यहाँ जाना है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए। दीज आर द वेरी गुड ट्रेड ऑफ्स, क्योंकि जब आप ये चीजें देख लेते हैं ना, क्योंकि आपके लिए बुदापेस्ट न्यू था, लेकिन न्यू इसलिए नहीं था क्योंकि आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली। अ, मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत सारी चीजें जो कि प्रिविलेज से नहीं आती, जिसमें आपके पेरेंट्स बहुत पार्ट अदा करते हैं आपका। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं अभी भी ऑन रिकॉर्ड कहूंगा, लोग 5-5 10-10 लाख, 5-5 6-6 लाख रुपए के फोन खरीदते हैं और ये करते हैं। दिस इज, योर जनरेशन इज लाइक दिस। ठीक है, हमें आईफोन चाहिए और हमें ये चाहिए। ठीक है, अगर आप एक मरतबा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, मैं कहता हूँ कि डोंट वेस्ट योर मनी ऑन योर फोन्स, वेस्ट वेस्ट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ट्रेवल द वर्ल्ड। ठीक है, बेशक आप नेपाल, भूटान, बेशक आप नेपाल जाए, बेशक आप भूटान जाए, बेशक आप श्रीलंका जाए, बेशक आप टंडो वाला यार चले जाएं, लेकिन ट्रैवल करें। ट्रैवल करने से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं, आपको पता चलता है हाउ आई एम डिफरेंट। आपको ट्रैवल से ये पता चलता है कि यार मैं प्रिविलेज हूँ। आप प्रिविलेज किसको एग्जैक्टली। कहते हैं, अगर आप एक ही सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सारे अमीर रहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं प्रिविलेज हूँ, आप जब तक आप अपने नीचे वालों को नहीं देखेंगे। ठीक है, आप जब बुदापेस्ट हम्म गई होंगी तभी तो आपको पता चला, यार मैं तो क्या ही प्रिविलेज हूँ, यहाँ तो लोगों के पास क्या क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ तो लोग किस किस तरीके से आ रहे हैं, कितना ईज चल रहा है जिंदगी में। तो बहुत जरूरी होता है कभी आपको
अपने से ज्यादा लोगों के Yeah. साथ बैठना चाहिए, कभी अपने से कम लोगों के साथ बैठना चाहिए, वो बहुत ट्रेन करता है आपको मूविंग फॉरवर्ड। Also, like just हाँ जी adding on to that, I think सबसे बड़ा difference was also like this idea of judgment, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ करते हुए you feel very judged, कि यार मैं इस तरह ना कर दूँ इस तरह से and all that. I don't know why, but at you least don't even feel as a woman, you I you felt you don't judged feel always. you don't feel judged, you have a perception in Pakistan कि लोग क्या कहेंगे। Exactly, और वो आपके अंदर ना जज नहीं, entrenched हो जाती है, तो हाँ जब हाँ, आप जज इधर नहीं आते हो होता, ना जज नहीं यार। होता, जज आप आपको क्या लगता है, मतलब जज नहीं होता। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको ना, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। इफ यू ट्रेवल द वर्ल्ड, एवरी होटल्स हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बेसन, पानी हाथ धोने के लिए, हम्म। ठीक है। और जिंदगी में पहली मर्तबा आपको कभी कभार आपको वो पता चलता है कि नलके खोलने वाले की जगह सेंसर वाले भी हैं, ठीक है। Yeah. तो उस टाइम पे ना वो क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर किसी को सेंसर वाला नल का यूज करना नहीं आता तो क्या वो अनप्रिविलेज है? नहीं, उसका एक्सपोजर कम है, ठीक है। यही हम्म। मेन मसला है, पाकिस्तान में लोगों को जज नहीं करते। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डर आपके दिमाग में वो ये होता है, लोग क्या कहेंगे, लोग विल हम्म। बिलीव मी। भाई गलती करने में क्या है, ठीक है, गलती सब करते हैं, सही है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या लगता है पाकिस्तान दुबई के अंदर लड़कियां एक्सीडेंट नहीं करती होंगी? No, no, लड़कियां definitely. लड़कियां Yeah, चालान yeah. कट लड़कियों के क्या, लड़कों के चालान कटते होंगे, ठीक है। Hmm. और पाकिस्तान की चालान से 200 गुना महंगा चालान होता होगा यहाँ का, ठीक है। बट कोई आके ये नहीं बोलता, हो तुम्हारा चालान कट गया, और तुमने ये काम गलत कर दिया, और तो तुम्हें रोड पार कर। क्योंकि हमें मसला ये है कि हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है इस तरीके से कि ये नहीं करना, ये Hmm. गलत है। भाई आप गलत है तो करने तो दो, करके उसको सीखने तो दो पहले। आपको डर इसलिए लगता है, Yeah. बीइंग बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय, आपको डर इसलिए लगता है कि अगर मैं गलत करूंगी तो मैं अपने आप को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन लोग क्या कहेंगे, उसकी वजह से Hmm. आप ट्राई नहीं करते हो कितनी सारी चीजें, ठीक है। आपको क्या लगा, Yeah. आपने बुदापेस्ट में 40-50 दिन के अंदर कोई गलती नहीं करी होगी, आपको सब तो नहीं आता होगा ना, ठीक है। मतलब आपको हर चीज तो नहीं आ सकती, ठीक है। फॉर मी देर इज एन एक्सपीरियंस, जिंदगी में पहली मरतबा जब मैं होटल गया किसी मीटिंग के लिए, तो मुझे पता चला कि वो कार्ड वाला कैसे करता है। मतलब Hmm. यू टैप द कार्ड, इट ओपन्स, ठीक है। और यू Yeah. पुट इन द कार्ड, इट ओपन, ठीक है। ऑन अ रिकॉर्ड मैं आपको बात बताता हूँ, व्हेन द फर्स्ट टाइम आई ट्रैवल टू यूएई, ठीक है, मुझे पता चला कि टैप टू पे होता है, पाकिस्तान में नहीं होता, तो मुझे पता ही नहीं है, Yeah. ठीक है। सो अगर मैं किसी, अब मैं क्या करूं, मैं चुप बैठा रहूं, नहीं यार लोग क्या कहेंगे, अरे भाई कोई तो एक इंसान होगा जो, जिसका पहली बार होगा, Yeah. कोई तो उसको बताएगा ना, ठीक है। मतलब अच्छा, दूसरा मसला ये कि पाकिस्तान में ना हम खुद भी कुछ नहीं करते। हम चैट जीपीटी से ये पूछ लेंगे कि अचार गोश्त कैसे बनाना है, भाई तुम चैट जीपीटी से ये भी पूछ लो कि ये काम कैसे होना है, ठीक है। यू कैन डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, यू कैन डू योर ओन रिसर्च, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी में आपको क्या कोई एडवर्टाइजमेंट देके आपने एडमिशन लिया था? नहीं ना, आपने रिसर्च करी होगी, आपने देखा होगा कि ठीक है Exactly. यार, मैं इवेल्युएशन लिस्ट बनाती हूँ, बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी, एक्सवाईजी यूनिवर्सिटी, एबीसी यूनिवर्सिटी। अच्छा यार, बुदापेस्ट Hmm. यूनिवर्सिटी में ये फायदे हैं, एबीसी यूनिवर्सिटी में ये फायदे नहीं है, चलो एबीसी यूनिवर्सिटी Yeah. हट जाएगी। बुदापेस्ट यूनिवर्सिटी में ये नुकसान है, इसके अंदर ये फायदा है, लेकिन यार यहाँ पे ये चीज सही है, ये भी चाहिए। तो पूरा का पूरा रिजल्ट के बाद आपके पास बुदापेस्ट आया होगा, जिसके बाद आप गई होंगी, ठीक है। Exactly. तो आप अपने लाइफ के डिसीजन में भी ये करो भाई, आप अपने ओवरऑल डिसीजन को भी इस तरीके से लेके चलो, ठीक है। जज करने वाला जज ना करने, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हर इंसान ने कभी ना कभी तो पहली बार वो चीज करनी है, ठीक है। पाकिस्तान में Hmm. मसला है कि पाकिस्तान में अब अज्यूम कर लेते हैं, एक बड़ी मेन चीज होती है, लड़कों को हमेशा से कहा जाता है लड़के रोते नहीं है, ठीक है। तो भाई Yeah. क्यों नहीं रोते लड़के, मतलब लड़कों की आंखों में मसला है, लड़के क्यों नहीं रोते, ठीक है। क्या इमोशनल साइड सिर्फ लड़कियों का होता है? अब आप मुझे बताएं, 50 दिन के अंदर आप एक आध बार तो रही होंगी, अम्मा की याद आई होगी, अब्बा की याद आई होगी, ठीक है। एटलीस्ट चार, या तो लड़की होने के नाते 40 दिन ही रही होंगी, ठीक है। लेकिन लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको आप कैसे, अच्छा आप कैसे किसी को बताओगे कि यार मुझे ये चीज फील हो रही है, ठीक है। Yeah. पाकिस्तान में आप अपनी अम्मी को बता सकती हैं, आप अपने अब्बा को बता सकती हैं, आप अपने दोस्तों को बता सकती हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने से होती नहीं,
भाई आपके दोस्त, आपके माँ बाप जो जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट इसलिए कर पाते हैं कि उनको पता होता है कि यार इस बच्ची को ये मसला हो रहा है अभी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना बुदापेस्ट में लाइफ चल रहा है, आप गई होंगी कमरे के अंदर, वहां पे एक बंदा होगा वो आपका खाना पका रहा होगा, एक बंदा आपका कपड़े धो रहा होगा। ठीक है, तो एवरीथिंग इज वेरी न्यू। जब वो बहुत ओवरवेलमिंग होती है ना, तो आपको थोड़ा सा ना इमोशनल हिट लगता है। ठीक है यार, यस आई डिड क्राई व्हेन आई मूव टू यूएई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। क्योंकि आपको बोलते हैं यार, क्योंकि आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग होता है ना, हर चीज नहीं होती है। फिर आप हर चीज लास्ट में आ रहे हो, तो एक जगह आप लव्स में पढ़ते हो, आप टॉप टियर यूनिवर्सिटी में थे, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। फिर आप बुदापेस्ट में आ गए, आप टॉप टियर यूनिवर्सिटी में पढ़ तो रहे हो, लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट, आप बहुत कोशिश करो लेकिन आप टॉप पे नहीं जा रहे। ठीक है, फिर ये भी है कि यार मैं ये भी सोच रही हूँ कि यार मैं टॉप पे नहीं जा रही, मैं अम्मा अब्बा को क्या बोलूंगी। तो यहाँ पे Yeah. बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन इमोशंस को सेट करना। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर रोना आ रहा है तो रो लो, हंसना आ रहा है तो हंस लो। ठीक है, क्योंकि हर बंदा कर रहा है, हर बंदे को कहीं ना कहीं इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए। आप हमेशा माचो बहन नहीं रह सकते। ठीक है, Yeah. यही सबसे बड़ा मसला होता है व्हेन पीपल सी यू ऑन ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, Hmm. that is the main, this is the next topic that I want to discuss is, you posted a picture in front of your university smiling। आप क्या 24 घंटे स्माइल करते हो? Yeah. मतलब यू रिमेम्बर द फर्स्ट कॉल व्हेन आई रीच आउट टू यू, क्या रियलिटी ये होगी? आई वाज लाइक हाँ। तो मतलब ये रियलिटी है ना। मसला ये है कि हम बस उस बबल में रहना चाहते हैं। ठीक है, Exactly. द मेन रीजन ऑफ डिस्कसिंग इट, कि अभी अगर जो आपको लोग नहीं जानते, या अगर मैं भी आपको नहीं जानता, तो मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था, मजे है जिंदगी में यार, लम्स से पड़ा है, हंगरी में मास्टर्स, 25 साल की उम्र में यार मजे, 27 साल में आएगी फिर किसी बड़ी एमएनसी में नौकरी। हमारा देखो, जब लोग सुनेंगे, जब लोग जानेंगे, तो लोगों को पता चलेगा कि भाई ऐसा नहीं है कि मैं लम्स में ऐसे गई हूँ, मैं बहुत मेहनत करके गई हूँ, मैं वहां पे भी मेहनत करती हूँ, मैंने हर जगह मेहनत करी। मेरी पहली इंटर्नशिप ऐसी नहीं थी कि बस मैं लम्स, लोग विल इवेल्युएट इन दैट कि यार आप लंच में थी इसकी आपकी जॉब लगी। कोई आपको नहीं बोल, कोई आपको ये सोचेगा ही नहीं। Exactly. That is so ठीक true. है, I मतलब agree. क्योंकि हम हाँ लोग आपको देखेंगे, ये लम्स में थी इसकी नौकरी इसलिए लगी। अरे भाई क्यों लगी उसकी नौकरी? लम्स वालों के पर थोड़ी लगे होते हैं, सिंपल से लोग होते हैं, दो आंखें होती हैं, दो आंखें दो नाक एक yeah. कान है। यही सेम चीजें सबके पास है, उनके पास कोई अलग पर थोड़ी लगे हुए हैं, बट कोई समझना नहीं Exactly. चाहता। दैट इज द मेन थिंग यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस बिफोर वी एंड द सेशन इज, Yeah. बीइंग अ 25 ईयर ओल्ड गर्ल, आई एम अज्यूमिंग आप 25 होगी, इससे कम ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, हाँ, उससे कम ही उससे हुआ. उससे कम ही होगी ना। मैं वो कर रहा हूँ, हिसाब लगा रहा हूँ कि जेंजी हो तो Yeah, yeah, 25 से ऊपर तो हो ही नहीं sure. सकता। ठीक है, थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है, माशाल्लाह से, यू आर एजुकेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम अ गुड यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। You have a very, you have a very good parents who understand your importance of the time, give you that freedom of speech, freedom of traveling, mashallah say, moving from middle class to upper middle class, and inshallah when you come back, you will do much better. ठीक है, any 3 4 5 pointers जो आपको लगता है being a girl, लड़कियों को खुद ये करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपने एक दिन बोला अपने अब्बू को मुझे बुदापेस्ट जाना है, उन्होंने हाँ चले आओ। बुरा पैसा खाला के घर तो जाना नहीं है, 2 साल की बात है, कैसे रहूंगी? ठीक है, किस तरीके, कौन सी ऐसी 4 5 चीजें आपको लगता है कि लड़कियों को अपने अंदर इस पे काम करना चाहिए, ताकि वो आगे जाके अच्छे से अच्छा पाथवे चूज कर सके अपने लिए? I think in all of this, I definitely recognize my own privilege because definitely not everyone's parents, are the way mine are, and especially because my mom was also working, so मेरी family में तो norm ही था कि अच्छा औरत काम कर रही है, चीजें खुद manage कर रही है and all that. So like I absolutely recognize my privilege before answering that question. I feel like um definitely in all of this, so for example, जिस तरह आपने कहा कि अच्छा लोगों ने मेरी वो तस्वीर देखी एंड ऑल दैट, लाइक इन ऑल ऑफ दिस लोग भी अज्यूम करते हैं कि अच्छा ठीक है, लाइक एकदम से ये लाइफ प्लान बन गया एंड ऑल दैट, बट इस तरह से यूजुअली हुआ नहीं था. सो लाइक इट वाज अ प्लान टू गो अब्रॉड, बट इट वाजंट समथिंग के, ओ जिस तरह, बिकॉज
आप जिसमें मास्टर्स करो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट शुड हैव अ Mhm. पर्पस। लाइक सबसे पहले एम्बेसी सवाल ही आपसे पूछती है, व्हाई दिस प्रोग्राम, यू नो, व्हाई डू यू वांट टू गो हियर? सो आई फील लाइक उसके अंदर इट शुड मेक सेंस टू यू, एंड आई थिंक दिस विल गो फॉर नॉट ओनली लाइक द फीमेल्स बट ऑल्सो दोज हु आर यू नो एस्पायरिंग टू कम अब्रॉड, क्योंकि आप सबने एम्बेसी के प्रोसेस से भी गुजरना है। सो डेफिनेटली understand why you're actually going abroad, because you know, to choose a program which doesn't align with, you know, what you have done, or even if you're switching fields, if it doesn't have any link, chances are Mhm. your visa is, you know, going to get rejected. So my number one advice would first be to properly, you know, not just know what you want, but to have some sense of gut feeling that okay, ये मैं करना चाहती हूँ। Because आपकी जब तक वो gut feeling नहीं होती, so even for Hungary, like there are rarely, like I have not met a lot of Pakistanis here, and Lums people are even less than that. So like, you know, it's not a top like normally आप नहीं सुनते कि आप like hungry जा रहे हो, but like it felt right because the program felt right to me, the finances felt right to me। अब अगला बंदा, उसकी अपनी स्टोरीज हैं, उसका अपना पाथवे है, उसका डिफरेंट मेजर है। अब हम्म। दैट डजंट मीन कि दे शुड जस्ट फॉलो मी कि अच्छा नहीं मैं भी इस यूनिवर्सिटी में चला और जाता हूँ इनका। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा आपके साथ आपके दोस्त रहेंगे। मतलब हर बंदे का अलग स्टोरी है, हर बंदे के लिए हर चीज सही नहीं है। Yeah, एग्जैक्टली, बट द थिंग इज कि वहाँ पे भी वो चीज़ इस तरह से है। सो डेफिनेटली अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट व्हाट वर्क्स फॉर यू एंड व्हाट डजंट वर्क फॉर यू। लाइक लाइफ का वो एक्सपीरियंस यही है कि अच्छा आप रियलाइज कर लो कि आपके लिए क्या सूट करता है क्या नहीं करता। मेरे लिए भी सेम विद माई मेजर कि अच्छा मेरे लिए ये मेजर सूट करता है क्योंकि मुझे वो फ्रीडम था कि अच्छा मैं डिफरेंट कोर्सेज लूँ एंड ऑल दैट। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ माई वर्क एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस से रियलाइज़ हुआ कि ओ मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ फ्यूचर में, मैं ये नहीं करना चाहती। सो फॉर एग्जाम्पल HR इज समथिंग आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग एंड ऑल। सो लाइक यू नो आपको वहाँ से पता लगता है कि वट वर्क्स फॉर यू वट डजेंट वर्क फॉर यू। सो माई एडवाइस वुड डेफिनेटली बी to you know at least अंडरस्टैंड योर गट फीलिंग कि अच्छा कोई चीज़ करने में अगर अच्छा लग रहा है या मज़ा आ रहा है, टेक नोट ऑफ दैट। एंड जो चीज़ आपको थोड़ा सा लाइक मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, डू बी माइंडफुल कि आप फिर किस तरह से उस पर रिएक्ट कर रहे हो, बिकॉज इट मीन्स कि वो फिर आपके लिए नहीं है। सो नो नीड टू लाइक यू नो पुश इट, यू शुड बी हैप्पी विद वट यू आर परसुइंग। Apart from that, I do feel that competition wali race, because I have come from that lumps competition race. Uh, in like in that competition, only sort of focus on how can you be better, because आप जब एक दफ़ा अगर आप कंपैरिजन के उसमें घुस गए ना, आप फिर घुस गए like we know when we're going into our first jobs as well, everybody's competing on salaries, naam, and all that, but at the same time you have to see what works for you, what doesn't work for you। अगर किसी की let's say 1 lakh salary है लेकिन उसका घर पास है to the office, it's not the same 1 lakh as the other person who's getting a 1 lakh, क्योंकि उसके let's say 30-40 thousand नहीं लग रहे पेट्रोल पे and all that, like you know there, it's not just the starting figure, it what works for you। तो आई फील लाइक वो जो कंपैरिजन जो लोग फिर उस तरह से करते हैं ना साइकिल में, understand and acknowledge your own differences as well and what makes you unique, and focus on that uniqueness rather than just trying to like go into one path, because आजकल भी like you know I was also confused with my masters कि यार public policy में करूँ क्योंकि that was my field कि अच्छा public policy में मैं कर लूँ। Data analytics बहुत common था, and then I was like yeah but okay, my work experience is in this, I like doing this, why force myself to do something and specialize in a field that I personally don't want to do anymore? So you know like academically be like things are different. So my advice to not only women but to honestly anybody aspiring to go abroad, because बहुत से लोगों ने भी मुझे reach out किया था after my post के you know like you know tell us about Hungary and all that, because they know it's not that common for people to come here. It's to actually just have what, to know what works for you, और फिर हम्म। उसके साथ साथ things will flow, because जब एम्बेसी में सबसे पहला सवाल आपसे पूछेंगे ना why this program and how did you find this university, आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि यार ओके am I even gonna get the visa or not, you know like आप आपके खुद ही वो आपके जवाब से पता लग जाएगा कि if it works। So definitely visa ratio is not the ideal right now, but just honestly have faith and know in your potential, और अगर
वो चीज़ नहीं भी होती, just detach yourself from the outcome. So in my situation, I was also working already. तो मेरे माइंड में था कि यार बस डिसीजन आ जाए, मेरा वीज़ा भी बल्कि डिले हो गया था, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरी रिजेक्शन आएगी. But alhamdulillah, it was an acceptance, and I then had to, like, resign and stuff. But I was, detached from the outcome. I was like, अच्छा ठीक है, acceptance आ गई, ठीक है, I'll go. अगर rejection आ गई, I need to focus on my job, and then, go forward next year अगर like plan हुआ and all that. So detaching yourself from the outcome is honestly the number one advice. Like, it should not have that big of a reaction to you and your life. And just sort of, I know there are things that you want really badly. Like मुझे भी बचपन में था मेरा ख्वाब, मैं हार्वर्ड, actual Harvard जाऊंगी, not Harvard of Pakistan. But I feel so blessed to go to Harvard of Pakistan as well, and sort of go about it. And I'm like, okay, like, that suited that 10-year-old Aisha. But now in my when I'm 23, so I'm like, okay, this works for me. So yeah, I think just staying true to your potential, just know what works for you. And everybody says 20s is all for experimenting. So आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको ज़रूर लाइक एक्सप्लोर करें, बिकॉज उसी से पता लगेगा व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट डजंट वर्क फॉर यू. लाइक जब तक आप डिफरेंट लाइक इंटर्नशिप्स, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक मार्केटिंग में कर ली, सेल्स में कर ली, तो आपको पता लगेगा इज सेल्स फॉर यू, इज मार्केटिंग फॉर यू. So like आगे वो आपके करियर को भी शेप करता है. So you should always be open to every opportunity you get, rather than to find excuses कि नहीं यार मैं ये कैसे करूँगी. But like somehow if there's a will, there's a way. So you have to put in that effort. You can't. I totally agree. Like कुछ लोग होते हैं who are like अच्छा नहीं, like आसान होना चाहिए and all. But जहाँ पे फिर like उस तरह से करना है, you would have to. So in my experience, the petrol cost was something that did bother us, because आपको होता है कि अच्छा आपकी स्टाइपेंड इंटर्नशिप का 30-35 है, और आपको आपके पूरे महीने के पैसे भी पेट्रोल के उतने ही हैं. सो टेक्निकली यू आर नॉट रियली अर्निंग एनीथिंग. बट फिर उसको आप उस तरह से ना देखो कि अच्छा मेरे पैसे कमाने एंड ऑल दैट. यू शुड वेलकम एवरी अपॉर्चुनिटी एज एन एक्सपीरियंस कि अच्छा ठीक है, इसको लेके मैं क्या सीखूंगी. हु नोज, इट माइट शेप योर करियर एज वेल. एंड दैट्स हाउ इट वर्क फॉर मी कि अच्छा मुझे लगा था कि लाइक मार्केटिंग में मैं करूँगी, बट व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एज अ प्रोडक्ट एनालिस्ट, वहाँ से मेरा पूरा करियर चेंज हो गया. सो डेफिनेटली that's what I mean when I say कि when you're open to different opportunities, you yourself realize how big the world is, and what can you do with it. Yeah. I think we have discussed very good pointers. Thank you so much, Aisha. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on this session. Just for the audience, if you wanted to reach out to Aisha, just message her on Instagram or LinkedIn. Write a proper message. She will gonna reply you as well. मुझे तो करा है तो आपको भी कर ही देंगी. So thank you so much, Aisha. It's my pleasure to have you on this session, and I'm pretty much sure a lot of people will learn a lot of good things from this. So thank you so much. Thank you so much, Umair. It was lovely being here. Thank you.